یہ عربی کی ایڈیشنل کلاس ہے جس میں کا بعض بنیادی چیزیں ہم پڑھ لیے ہیں، جیسے اسم، فعل، حرف، ماضی، مضارع اور فعل کی الگ الگ سے حالتیں، صیغے اور مبتدا خبر. جو بحث ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی، جو لیسن پڑھ رہے ہیں، وہ ہے موصوف صفت. موصوف اور صفت. موصوف ایسا اسم جس کی اچھائی یا برائی، حالت و کیفیت بیان کی جائے، اس کو موصوف کہتے ہیں. اور اس کی جو اچھائی، برائی، کیفیت، حالت ہے، اس کو صفت کہتے ہیں. اس کو صفت کہتے ہیں، ایڈجیکٹیو. یہ پڑھ لی ہم لوگ. تو یہ دونوں جو چیزیں ہوتی ہیں، موصوف اور صفت، ان دونوں میں بعض چیزوں کے اندر مطابقت ہوتی ہے، یکسانیت ہوتی ہے، کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، سملیرٹی ہوتی ہے. دونوں چیزوں کے اندر جو موصوف کے اندر ہوگا وہ صفت کے اندر ہوگی. یہ چیزیں ہم لوگ ان میں سے دو چیزیں لاسٹ ویک پڑھے تھے شاید نا، یاد ہے پچھلا آپ کو کچھ؟ وہ ال ہوگا تو وہ بھی ال ہوگا، اور وہ تنوین ہوگا تو یہ بھی تنوین، اینڈ کا سیم ہوگا. جی اچھا، تو یہ ایک چیز ہے الحمدللہ. یعنی اگر پہلے پر الف لام ہو تو دوسرے پر بھی الف لام ہوگا. یہ جو ہے ہم لوگ پڑھ لیتے اس سے پہلے. پہلے پر تنوین ہے تو دوسرے پر بھی تنوین ہوگی، یہ پڑھ لیتے کیا؟ اور کوئی دوسری چیز پڑھے تھے ساتھ میں شاید. آگے سب لوگ اسٹوڈنٹس ریوائز کریں گے یا آگے کا پڑھیں گے ہم لوگ تھوڑا؟ تھوڑا ریویو کریں گے کیسے؟ ہاں آگے سب. دیکھیے، موصوف اس اسم کو کہتے ہیں جس کی کوئی اچھائی یا برائی بیان کی جائے. جیسے طالب مجتہد. طالب مجتہد کے معنی ہوتے ہیں محنتی طالب علم. یہ پڑھے تھے ہم لوگ ایک چیز، تو آج پھر پڑھتے ہیں اس کو تاکہ پچھلا یاد رہے. طالب مجتہد. طالب مجتہد محنتی طالب علم. محنتی طالب علم، ڈیلیجنٹلی اسٹوڈنٹ، محنتی طالب علم. تو طالب میں دیکھیے پہلے میں تنوین ہے، طالب میں تنوین ہے تو اس پر بھی مجتہد پر بھی تنوین آئے گی. طالب مجتہد. یا اگر الف لام اس پر آئے تو اس پر بھی الف لام آئے گا. الطالب المجتہد. الطالب المجتہد یہ پڑھے تھے ہم لوگ نا. الطالب المجتہد محنتی طالب علم. تو دونوں میں سملیرٹی رہے گی. کس چیز میں؟ الف لام میں اور تنوین میں. یہ فرسٹ چیز. یہ اسی وزن پر اب کوئی دوسرا بنائے. الطالب الکسلان. الطالب الکسلان. کسلان کی معنی ہوتا ہے سست. کسلان کی معنی سست، لیزی. الطالب الکسلان. دیکھیے الطالب پر الف لام آیا تو اس کے بعد کسلان کے اوپر بھی الف لام آئے گا. الطالب الکسلان کیا معنی ہے؟ سست طالب علم. سست طالب علم، لیزی بوائے، محنت نہیں کرنے والا، کام چور جس کو کہتے ہیں. الطالب سست طالب، سست طالب. ٹھیک ہے. اس کے بعد الولد الصالح. الولد الصالح. صالح کی معنی نیک نا. صالح کی معنی نیک. ولد صالح بھی کہہ سکتے ہیں. ولد صالح یا الولد الصالح. حدیث ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له.
नेक लड़का जो आदमी छोड़ जाए उसकी वफात के बाद उसके लिए दुआ करता है, नेक लड़का। तो दोनों में देखिए वलदुन के ऊपर अलिफ लाम नहीं है तो सालिहुन के ऊपर भी अलिफ लाम नहीं आएगा, वलदुन के ऊपर तनवीन है तो सालिहुन के ऊपर भी तनवीन आएगी। इसको कहते हैं मौसूफ और सिफत, इसको कहते हैं मौसूफ और सिफत। वलद जो है ये नॉन है और सालिह जो है ये एडजेक्टिव है, उसकी सिफत बयान कर रहा है। अगर हम लोग इसको मुब्तदा खबर बनाना चाह रहे हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अगर पहले पर अलिफ लाम आए दूसरे पर अलिफ लाम नहीं आए तो ये क्या होता है, क्या इसको जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी जुमला खबरिया कहते हैं, मुब्तदा खबर। यहाँ पर खबर दी जा रही है कि लड़का नेक है। इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं कि इसमें एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको नोटिफाई किया जा रहा है कि जो लड़का है वो नेक है, साले है। तो ये मुब्तदा खबर होगा, जो कि हमारी बहस नहीं, हमारी जो बहस चल रही है अभी वो क्या है, वलदुन सालिहुन, लड़का नेक है, ये असल हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये लास्ट वीक हम लोग एक चीज पढ़े थे कि दोनों में अलिफ लाम है, अलिफ लाम है तो दोनों पर अलिफ लाम आएगा, तनवीन है तो दोनों पर तनवीन आएगी, ये एक चीज पढ़े थे। और दूसरी चीज क्या पढ़े थे हम लोग, याद है किसी को? जो मुताबिकत होनी चाहिए, यानी नाउन नाउन पहले आएगा, एडजेक्टिव बाद में आएगा। हाँ बिल्कुल, नाउन पहले आएगा, एडजेक्टिव बाद में आएगा, इसमें पहले सिफत बाद में, मौसूफ पहले सिफत बाद में। लेकिन जब ट्रांसलेशन आप करेंगे तो उल्टा करेंगे, ट्रांसलेशन जब करेंगे तो पहले एडजेक्टिव का ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद फिर नॉन का। जैसे तालिबुन मुज्तहिदुन, मेहनती तालिब इल्म, अल वलदु सालिहु, नेक लड़का, नेक लड़का। ट्रांसलेट उल्टा करेंगे, बिल्कुल अपोजिट करेंगे। लिखने में, रिटर्न में जो है पहले नॉन आएगा बाद में एडजेक्टिव, लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे पहले एडजेक्टिव का ट्रांसलेट करेंगे फिर बाद में नॉन का। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग गुज़िश्ता हफ्ते देखे थे। तो एक और चीज देखे थे, क्या देखे थे हम लोग, कोई बता सकते हैं? दो इसमें जो सिमिलरिटी होनी चाहिए दोनों में, और एक चीज क्या देखे थे? इसमें मुतालिकत। हाँ, मुताबिकत जो है दूसरी कौन सी देखे थे? तदकीर व तानिस। अगर जेंडर सेम होगा ना? बिल्कुल जेंडर सेम होगा। ये दो चीजें हम लोग देखे थे। अगर ये नॉन जो है फीमेल है तो उसका एडजेक्टिव भी फीमेल आएगा। मौसूफ अगर मोन्नस है तो सिफत भी मोन्नस आएगी। ये भी हम लोग पढ़े थे पिछले साल ना, पिछले वीक। अलकुर्रासतुल जदीदतु, अलकुर्रासतुल जदीदतु क्या माना है इसका? न्यू नोटबुक। न्यू नोटबुक, बिल्कुल न्यू नोटबुक, नई कॉपी, नई नोटबुक, नई कॉपी। तो देखिए अलकुर्रासतु मोन्नस है ना, तो इसलिए अल जदीदतु भी क्या लाया हम लोग, क्या लाया हम लोगों ने? मोन्नस लाया। ये पढ़े थे लास्ट वीक ना। और देखिए अलबिंतुल मुज्तहिदतु, अलबिंतुल मुज्तहिदतु, अलबिंतुल मुज्तहिदतु, लड़की मेहनती है, लड़की मेहनती है। तो हम लोग अलबिंत चूंकि मोन्नस है तो अलमुज्तहिदतु भी मोन्नस लाया हम लोगों ने। अलमस्जिदुल जदीदु, अलमस्जिदुल जदीदु, मस्जिद, नई मस्जिद, न्यू मस्जिद, न्यू मस्जिद। अलमस्जिदुल जदीदु, नई मस्जिद। तो ये मुदक्कर है तो वो भी मुदक्कर होगा। अलमदरसतुल जदीदतु, अलमदरसतुल जदीद आएगा, जदीदतु आएगा, बोलिए। जदीदतु, जदीदतु आएगा, क्यों? वो अल मुदरिसतु है, वो फीमेल है तो ये भी फीमेल हो गया। हाँ बिल्कुल, अल मदरसतु मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस आएगा। अच्छा, मुअन्नस किसको कहते हैं पता नहीं, इसको याद रखिए। मुअन्नस मुदक्कर जो है मेल को कहते हैं, मुअन्नस फीमेल को कहते हैं। इससे पहले बोला था शायद मैंने, मुदक्कर जो है मेल को कहते हैं मर्द, मुअन्नस फीमेल को कहते हैं औरत। ठीक है, ये चीजें याद रख लें आप लोग ताकि कंफ्यूज ना हो। मुदक्कर मुअन्नस, मुदक्कर मुअन्नस में क्या फर्क है? मुदक्कर मेल के लिए
اور मुअन्नस फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, सब लोग नोट कर लें इसको. मुदक्कर मुअन्नस, मुदक्कर मुअन्नस, मुदक्कर मेल के लिए, मुअन्नस फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है. तो मौसूफ अगर मेल हो तो सिफत भी मेल आएगी, और अगर मौसूफ फीमेल हो तो उसकी सिफत भी फीमेल आएगी. आई बात समझ में? और कोई बोले कोई सेंटेंस मुअन्नस के लिए, मेल फीमेल का. السيارة الجميلة. माशाल्लाह. अस्सय्यारतु अल जमीलतु, सय्यारा खूबसूरत है, या जदीदतु. अस्सय्यारतुल जदीदतु कहें या जमीलतु कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप. सय्यारा खूबसूरत है, कार खूबसूरत है, कार नई है. अस्सय्यारतु अल जदीदतु. शेख कार खूबसूरत है या खूबसूरत कार? हाँ नहीं, खूबसूरत कार, अफवन सॉरी, हाँ खूबसूरत कार कहेंगे. कार खूबसूरत है तो फिर वो सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा. ट्रांसलेशन में बिल्कुल सही कहा आपने. अस्सय्यारतु अल जदीदतु, अल जदीदतु नई कार, खूबसूरत कार, नई कार. आई बात समझ में? आया समझ में? अस्सय्यारतुल गालियतु, अस्सय्यारतुल गालियतु को तो अस्सय्यारतुल गालियतु, गालियतु की माने एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी कार. अस्सय्यारतुल गालियतु, कॉस्टली, गालियतु. अस्सय्यारतुल गालियतु महंगी कार, महंगी कार, एक्सपेंसिव या जो है कॉस्टली. तो अस्सय्यारतुल गालियतु, अस्सय्यारा क्योंकि मुअन्नस है तो अल गालियतु भी मुअन्नस आएगा. ठीक है, अगर आप इसकी बजाय कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें अस्सय्यारा गालियतु की बजाय, अलकलमुल गाली, अलकलमुल गाली महंगा कलम, तो यहाँ पर अलगाली आएगा, अलगालियतु नहीं आएगा, अलगालियतु इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो ये दो चीजें हैं जो हम लोग लास्ट वीक पढ़े थे. इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे. सब लोग जो है पार्टिसिपेट करें, जब कोई चीज पूछे तो जो है हर कोई जवाब दे, चाहे गलत ही सही, ताकि मालूम हो कि आप सुन रहे हैं. और अगर गलत है फिर भी आपने कहा तो आपकी जब तस्हीह होगी, इस्लाह करेंगे, करेक्शन करेंगे, तो फिर आपको वो चीज़ हमेशा माइंड में रहेगी, जहन में रहेगी. इसलिए जब कोई चीज़ पूछे तो हर कोई जो है पार्टिसिपेट करे. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोग पढ़े थे. अब तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि ये दो चीज़ों में मुताबिकत जरूरी है. तीसरी चीज़ जो है अदद में मुताबिकत होनी चाहिए. अदद में, मौसूफ और सिफत में मुताबिकत होनी चाहिए, मुताबिकत होनी चाहिए. लिख लेंगे इसको. अदद में, नंबरिंग में मुताबिकत होनी चाहिए. जैसे कहेंगे हम लोग अत्तालिबुल मुज्तहिदु, वही एग्जांपल देखें, थोड़ा चेंज कर देंगे आगे. अत्तालिबुल मुज्तहिदु, मैं एक ही एग्जांपल आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जहन में बैठ जाए बात. अत्तालिबानी मुज्तहिदानी, अत्तालिबानी अल मुज्तहिदानी. देखिए यहाँ पर अल मुज्तहिदानी हम लोग तस्निया जिक्र करें, तस्निया यानी दो, तस्निया के माने दो. अत्तुल्लाबुल मुज्तहिदूना, अत्तुल्लाबुल मुज्तहिदूना, अत्तुल्लाबुल मुज्तहिदूना मेहनती तलबा. अत्तालिबुल मुज्तहिदु एक मेहनती तालिब इल्म, अत्तालिबानी अल मुज्तहिदानी दो मेहनती तालिब इल्म, अत्तुल्लाबुल मुज्तहिदूना बहुत से मेहनती तालिब इल्म, तलबा. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को. एक देखिए मौसूफ अगर सिंगल है तो सिफत भी उसकी सिंगल आएगी, और अगर मौसूफ तस्निया है ट्वाइस है तो सिफत भी उसकी तस्निया आएगी. अत्तुल्लाबुल मुज्तहिदूना, तुल्लाब अगर मुस्तहिद है प्लूरल है तो उसकी सिफत भी प्लूरल आएगी. आई बात समझ में? तो ये तीसरी चीज है.
तीसरी चीज नंबरिंग में दोनों बराबर होंगे, मुताबकत में यानी अदद में मुताबकत पाई जाएगी, अदद में मुताबकत पाई जाएगी। जैसे कहें जा तालिबुन, जा के माने आना ना, जा तालिबुल मुज्तहिदु, मेहनती तालिब इल्म आया। अगर हम तस्निया कहना चाह रहे हैं तो क्या कहेंगे, जा तालिबानी, जा तालिबानिल मुज्तहिदानी, जा तालिबानिल मुज्तहिदानी। आई बात समझ में? जा तालिबूना तुल्लाबुल मुज्तहिदूना, जमा करेंगे उसको। जा तुल्लाबुल मुज्तहिदूना, ठीक है। तो ये अगर सिंगल है तो वो भी सिंगल आएगा, ये बात आ गई समझ में। इसी तरह देखिए जा तालिबतु, आप उसको फीमेल करें, जा तालिबतुल मुज्तहिदतु, जा तालिबतुल मुज्तहिदतु, जा तालिबतानी, जा तालिबतानी, तालिबतुन है ना, तालिबतानी तस्निया आएगा, हम लोग पढ़े इसी बला नहीं, तालिबतानी, तालिबतानी अल मुज्तहिदा, मुज्तहिदातानी, मुज्तहिदतानी, दो मेहनती तालिबा, दो मेहनती फीमेल स्टूडेंट्स आए। जा तालिबतानी, तालिबतानी एक मिनट थोड़ा रॉन्ग होगा, तालिबतानी के बाद अलिफ आना चाहिए, अलिफ के बाद ता के बाद, देखिए ठीक है, तालिबतानी लिख लिया आप लोग। जा तालिबतानिल मुज्तहिदतानी, अब देखिए जा तालिबातुन, जा तालिबातुन, तालिबातुन जमा है ना, जा तालिबातुल, तालिबातुल मुज्तहिदातु, आया समझ में? जा तालिबातुल मुज्तहिदातु, मेहनती लड़कियां या मेहनती स्टूडेंट्स आई फीमेल। तो ये थर्ड वन है। पहला क्या है, हम लोग अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा आएगी, और अगर मौसूफ नकीरा है तो सिफत भी नकीरा आएगी, पढ़े हम लोग। यानी अलिफ लाम आए तो उस पर भी अलिफ लाम, ये इस पर तनवीन है तो उस पर भी तनवीन, और अगर ये मुदक्कर है तो वो भी मुदक्कर आएगा, ये अगर मुअन्नस है तो वो भी मुअन्नस आएगा। इसी तरह अगर ये मुफरद है, सिंगल है, वाहिद है तो वो भी सिंगल, ये तस्निया हो तो वो भी तस्निया, और अगर मौसूफ जमा हो तो सिफत भी जमा आएगी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, तीसरी चीज है, ये तीसरी चीज है। आई बात समझ में? शेख एक सवाल था। बोलिए जी, ये आपने लिखा जाअत तालिबतुल मुज्तहिदतु, यहाँ जाअत क्यों नहीं आया? फेल माजी का। अच्छा सही बोला आपने, जाअत ही आएगा वहां पर, जाअत तालिबतुन, सही, जाअत तालिबतु, जाअत तालिब, जाअत तालिबतु अल मुस्तहिदतु, बराबर सब जगह वही आना चाहिए। जाअत जो है मुअन्नस का सेगा है ना जी, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। जात, और देखिए हर जगह तस्निया ही यानी मुफरद ही आएगा जात, यहाँ पर जात तालिबतानी है तो जाता नहीं आएगा, इसलिए कि फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद ही आएगा, वाहिद है ना? आएगा। जी, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो इसमें देखिए जात मुअन्नस है तो यानी मुफरद है तो तस्निया भी, चाहे वो फाइल तस्निया हो या जमा हो, वो फेल वाहिद ही आएगा, मुफरद ही आएगा, ठीक है। नीचे भी उसे कर देते, जाअत तालिबातानी, जाअत तालिबातुल मुस्तहिदातु,
जाअत तालिबातुल मुज्तहिदात। तो ये इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को। वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा आई समझ में? जी सर। आ गया समझ में? तो अब तक कितनी चीजें हम लोग पढ़े? 3 चीजें पढ़े हम लोग, 3 चीजें पढ़े ना। एक ये कि मारिफा नकीरा, लिख देता हूं मैं यहाँ पर रिवाइज हो जाए। मारिफा नकीरा, दूसरा मुदक्कर मुअन्नस, मुदक्कर मुअन्नस, तीसरा वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। ठीक है, इतनी चीजें पढ़े। अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी, मौसूफ नकीरा हो तो सिफत भी नकीरा होगी, मौसूफ मुदक्कर हो तो सिफत भी मुदक्कर होगी, और अगर मौसूफ मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस होगी, और मौसूफ वाहिद हो तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ तस्निया हो तो सिफत भी तस्निया, मौसूफ अगर जमा हो तो सिफत भी जमा होगी। तो ये 3 चीजें हम लोग पढ़े अब तक, है ना। मिसाल लिख देंगे कि सबकी। मारिफा नकीरा की देखिए, तालिबुल, कोई दूसरी मिसाल लिखेंगे, कोई दूसरी मिसाल बोले मारिफा नकीरा की बोल सकूं। अलबलदुल कबीर, बड़ा शहर, अलबलदुल कबीर, बड़ा शहर। ठीक है, दूसरा बलदुल कबीर, बलदुल कबीर। देखिए अलबलदुल कबीर दोनों पर अलिफ लाम, बलदुल कबीर दोनों पर तनवीन, इसकी एक मिसाल हो गई। अब नीचे देखिए मुदक्कर मुअन्नस की मिसाल देखिए, तालिबुल मुस्तहिद, अलबलदतुल कबीर लिख देंगे, बलदा भी इस्तेमाल होता है ना उसके लिए, अलबलदतुल कबीरतु, अलबलदतुल कबीरतु, और अलबलदुल कबीर। अलबलदुल कबीर ऊपर भी आया, देखिए यहाँ पर मारिफा नकीरा में भी अलबलदुल कबीर जिक्र करें हम लोग, और यहाँ पर भी जिक्र करें। असल बताना मकसद यहाँ पर कि वहाँ पर मारिफा नकीरा के लिए हम लोग को एग्जाम्पल पेश किया, यहाँ पर मुदक्कर मुअन्नस के लिए एग्जाम्पल पेश किया हम लोग। ठीक है, तो एक ही एग्जाम्पल जो है 2 जगह यूज करें, बल्कि 4 जगह भी यूज कर सकते हैं हम लोग एक ही। तो देखिए अलबलदुल कबीर, बड़ा शहर, अलबलदतुल कबीरा, बड़ा शहर, ये भी वही माना होगा, लेकिन क्या है वर्ड ये जो है मुअन्नस है, ये वर्ड मुअन्नस है, तो उसकी जो सिफत है वो भी मुअन्नस लाई जाएगी। तो ये तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज देखिए, बलदुल कबीर, फिर वही जिक्र कर रहा हूं मैं मिसाल, क्यों बताऊंगा। अल बलदानी अल कबीरानी, अल बलदानी अल कबीरानी, अल बिलादु अल कबीरा। देखिए अलबलदुल कबीर वाहिद है, अलबलद वाहिद है तो अल कबीर भी वाहिद है, अल बलदानी तस्निया है तो अल कबीरानी तस्निया है, अल बिलादु ये जमा है, अल बिलादु जो है बलद की जमा अल बिलाद है, तो उसकी जो है तस्निया ये है अल कबीरा, ये भी जो है वाहिद मुअन्नस है लेकिन जमा के हुक्म में आती है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आती है, गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आती है। तो यहाँ पर जो है अलबिलाद गैर आकिल है इसलिए उसकी जमा जो है वाहिद मुअन्नस लाई गई है।
लेकिन यहाँ पर हुक्म उसका जमा ही का होगा कि बहुत सारे बड़े शहर, अलबलदानी कबीरानी, 2 बड़े शहर, अलबलदुल कबीर एक बड़ा शहर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वाहिद तस्निया जमा के लिए मिसाल पेश किए हैं, और ऊपर मुदक्कर मुअन्नस के लिए अलबलदुल कबीरतु की मिसाल पेश किए हैं, और ऊपर मारिफा नकीरा के लिए अलबलदुल कबीरु की क्या पेश किए, मिसाल पेश किए। तो ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। पता चल गया आप लोगों को, इतना मालूम हो? जी। एक तो मारिफा क्या कहते हैं उसको, वाहिद जमा में दोनों बराबर हो, और मारिफा नकीरा में दोनों बराबर हो, और मुदक्कर और मुअन्नस में दोनों बराबर हो। और एक चीज क्या है, 4 चीजों में मुताबिकत होनी चाहिए ना। और एक चीज बता सकते हैं कोई? बता सकते हैं कोई? एराब दोनों का बराबर होना चाहिए, एराब दोनों का। ये लिख लें आप लोग, 1 मिनट पहला ये लिख लें, तो फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। लिख लिए लोग, सब लोग लिख लें। 1 मिनट सर। ऊपर हेडिंग लिखिए पहले, मारिफा नकीरा हेडिंग है वो, उसके बाद बलदुल कबीरु, बलदुल कबीरुन ये मिसाल है, और मुदक्कर मुअन्नस ये हेडिंग कायम करें। फिर उसके बाद जो है अलबलदतुल कबीरतु, अल बलदुल कबीरु ये लिख लें। लिखें जी। सब लोग लिख लिए। अब देखिए एराब देखना है, एराब में भी सब बराबर होने चाहिए। जैसे एराब में बराबर होना चाहिए। देखिए एराब में जो है, अगर इसका मारिफा का एराब जम्मा है तो इसका भी जम्मा आएगा, उसका फता है तो इसका फता आएगा, उसको कसरा है तो इसको भी कसरा आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए अलबलदुल कबीर, अलबलदुल कबीर, अलबलदुल कबीर उसके ऊपर पेश है, इसके ऊपर पेश है। अब हम लोग लिखेंगे रायतुल, रायतुल बलदल, मफूला नहीं है, क्या पढ़ेंगे, नुसा जबर पढ़ेंगे, जेर पढ़ेंगे? रायतुल बलदल कबीरा, कबीरा पढ़ेंगे ना। क्या लिखेंगे, अल कबीरा लिखेंगे या अल कबीरी लिखेंगे या अल कबीरू लिखेंगे? कबीरा। क्यों? अल बलद पर जबर है तो इसलिए यहाँ पर भी जबर पढ़ेंगे। लेकिन शेख रायतु अल बलदा क्यों आया, ये वर्ब की वजह से क्या? रायतु का नहीं, वो ऑब्जेक्ट है ना इसका, मफूल के ऊपर नसब आएगा, हम लोग पिछली मरतबा पढ़े थे। रायतु ये तो फर्स्ट पर्सन है कि मैंने देखा, रायतु के माने मैंने देखा, किसको देखा? अल बलदा, शहर को देखा, एक बड़े शहर को देखा मैंने।
तो अलबलदा जो कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को नसब आएगा, मफूल को जबर आता है ना, मफूल को जबर आता है। मररतु बिल बलदिल कबीरी, बलदिल कबीरी कसरा आएगा, बिल बलदी, बलद को कसरा है तो इसको क्या आएगा, कबीर को क्या आएगा, कबीर को क्या आएगा, कसरा ही आएगा, कसरा ही आएगा, बलदुल कबीरी। फिर अगर ऐसा बोले जलसा अल मुदर्रिसु अल जदीद, ऐसा रहेगा कि जलसा अल मुदर्रिसा जलसल मुदीरु, जलसल मुदीर, मुदर्रिसु जदीदु, जलसा फाइल, जलस के बाद फाइल आएगा ना, जलसा का जो सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जबर आएगा। हाँ तो जलसा the new teacher sat, ओके तो ओके तो जलसा अल मुदर्रिसुल जदीदु, हाँ तो उसमें फतह क्यों नहीं आया, मुदर्रिसु क्यों, मुदर्रिसा क्यों नहीं हुआ वहां पर? इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर वो मुदर्रिस जो है, सैट बैठने वाला कौन है वहां पर, मुदर्रिस है ना, वो फाइल है जी, वो फाइल है, फाइल को जबर आएगा, फाइल को पेश आएगा, मफूल को जबर आएगा, मफूल को जबर आएगा। वहां पर जो मुदर्रिस है ना, टीचर जो है बैठा है तो टीचर फाइल है ना, सब्जेक्ट है। अच्छा राई तो यानी मैंने देखा तो मैं अलग हो गया वो, हाँ तो मैं अलग होगा, मैं के अंदर जो है मैंने किसको, हाँ ये दो मिलाकर है, इसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। राय तू की जो ये है प्रोनाउन, इसमें ये प्रोनाउन जो ضمیر है ये सब्जेक्ट है वो, तो राय तू मैंने देखा, या उसकी वजह अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है तो ये लिख सकते हैं रा जैदुन, रा जैदुन, रा जैदुन, यहाँ पर ये तनवीन आएगी, देखिए रा जैदुन अल बलदल, अल बलदल ये नसब पढ़ रहे हैं हम लोग, अल बलदल कबीरा, कबीरा नसब पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर रहा देखा, किसने देखा, जैद ने देखा, जैद ने बड़ा शहर देखा, तो देखने वाला जैद है तो जैद हमेशा क्या होगा, पेश आएगा, इसको क्या आएगा, पेश आएगा। अल बलदल कबीरा ये मफूल है, फाइल और मफूल, रहा फेल, जैद फाइल, अल बलदल कबीरा ये मफूल है, दोनों मिलाकर मफूल है, मौसूफ सिफत होकर मफूल बनता है। तो मफूल के ऊपर जबर आया और फाइल के ऊपर पेश आया। हम लोग इससे पहले पढ़े ना, फाइल क्या है, फाइल के ऊपर पेश आता, हम लोग इससे पहले पढ़े थे। फाइल किसको कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं ना। फर्स्ट लेसन, बिल्कुल फर्स्ट, जब एडिशनल क्लासेस शुरू हुई थी हमारी, जी 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 सर, एडिशनल क्लासेस शुरू होने के बाद फर्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे, फाइल मफूल, डूअर, हाँ जी, फेल फाइल मफूल, फेल फाइल मफूल पढ़े थे हम लोग। तो फाइल को पेश आएगा ये हम लोग पढ़े थे, तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चौथी चीज जो दोनों में सिमिलर होगी वो क्या है, एराब, एराब इसके ऊपर पेश है तो मौसूफ पर पेश है तो सिफत पर पेश आएगा, और अगर मौसूफ पर जबर है तो सिफत पर जबर आएगा, और मौसूफ पर अगर जेर है तो सिफत पर भी जेर आएगा। ये चार चीजें जो है इन दोनों में सेम होती हैं, दोनों में बिल्कुल एक ही होती हैं, मारिफा नकीरा, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद तस्निया जमा, एराब, ये चार चीजें। ये चौथी चीज भी आप लोग लिख लें, चौथी चीज भी लिख लें आप लोग, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं। यहाँ पर मौसूफ सिफत की जो है ये बहस खत्म हो गई है। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जैसे कि आप बोले थे कि रिवाइज करेंगे शुरू से, तो नेक्स्ट वीक आप लोग जो है नोटबुक आपकी बिल्कुल बाय हार्ट कर आना। जो फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़े थे इसम फेल हर्फ क्या, तो वहां से बिल्कुल शुरू से पढ़ कर आए आप लोग, ठीक है। तो ये मौसूफ सिफत है। और अगर कोई जो है मुनज़्ज़म लिखा है कोई डिसिप्लिन के साथ हर चीज, तो वो आने के बाद जो सबसे पहले वो पेश करे, यानी क्या क्या चीजें हम लोग लिखे हैं पढ़े हैं वो चीज जो है कोई बयान करे, ठीक है। तो मौसूफ सिफत लिख लिए इतनी चीजें आप लोग, जी
किसी को कोई शक इसमें? इतनी जो 4 चीजें हम लोग पढ़े हैं इसमें कोई डाउट किसी को? इसके फिर फर्दर एग्जांपल्स भी देखेंगे तो और अच्छा याद होगा इंशाल्लाह। तो इतनी चीजें मालूम हो गई ना सबको, मारिफा, नकीरा, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा, इराब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग को पता है? किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसलिए कि अगर आप अभी नहीं पूछेंगे फिर बाद में और बर्डन आपको ज्यादा होगा। हम लोग 2 से 3, 4 से 5, 10 मरतबा समझाएंगे अगर एक कोई चीज नहीं समझ में आ रही, लेकिन पूछे जरूर आप कि फला चीज नहीं समझ में आ रही है बोलकर। तो इसमें जो है कोई ऐसा मामला नहीं कि 2-3 मरतबा समझाए, हमको समझ में नहीं तो हम शर्म के मारे बैठ जाए खामोश बिना पूछे। नहीं, इस मामले में जो है बिल्कुल शर्म नहीं करना चाहिए। एक हदीस क्या है, बल्कि इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह का कौल है कि ला यतअल्लमुल इल्म मुस्तहियन वला मुस्तकबिरिन, ला यतअल्लमुल इल्म मुस्तहियन वला मुस्तकबिरिन, कि तकब्बुर करने वाले और शर्म करने वाले इल्म कभी हासिल नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह ने अपने इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर इसको जिक्र किया है। एक तो एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए और दूसरा जो है शर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग जो है शर्म महसूस करेंगे तो भी इल्म हासिल नहीं कर सकते। सहाबा इकराम को देखे हैं, जब कुरान नाजिल हो रहा था सहाबा इकराम की उम्र कितनी थी? सब 50 साल के ऊपर। कुछ सहाबा थे जो 10, 15, 20 साल के थे, वरना 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में उन्होंने कुरान सीखा है। जी सर, तो शेख इस एक बार मामले में थोड़ा रिवाइज कर ले तो बेहतर है शेख। ईशा की जमात हुई तो जाके आया मैं। अच्छा, जी, ईशा की जमात छूट रही थी तो जाके पढ़ के आया तो थोड़ा छूट गया। कौन सा छूटा? ये मारूफ में। तो इसमें जो 4 चीजें हैं, 4 चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी है, मारिफा, नकीरा, मुज़क्कर, मुअन्नस। मारिफा अगर मुज़क्कर हो तो नकीरा, या मौसूफ अगर मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा आएगी। जैसे अत्तालिब मारिफा है तो उसकी सिफत अल-मुज्तहिद वो भी मारिफा होगी। अगर मौसूफ नकीरा है जैसे तालिबुन तो उसकी सिफत भी नकीरा आएगी, मुज्तहिदुन। और इसी तरह मुज़क्कर मारिफा मौसूफ अगर मुज़क्कर हो जैसे अत्तालिब मुज़क्कर है तो उसकी सिफत जो है अल-मुज्तहिद भी सिफत आई, अत्तालिबुल मुज्तहिदु। और अगर ये मौसूफ मुअन्नस हो जैसे अत्तालिबतु मुअन्नस है ना, मुअन्नस है ना अत्तालिबतु, या अलबिन्तु अत्तालिबतु दोनों मुअन्नस है तो उसकी सिफत भी क्या आएगी? मुअन्नस आएगी, अत्तालिबतुल मुज्तहिदतु। आई बस समझ में 2 चीजें, ये 2 बेसिक जो शुरू में पढ़े। उसके बाद जो है वाहिद, तस्निया, जमा। अगर तालिब मुज़क्कर है, मुफरद है, वाहिद है तो उसकी सिफत भी वाहिद आएगी। जैसे अल-बलदुल कबीर यहाँ पर दिखा, अल-बलदु यहाँ पर वाहिद है तो अल-कबीरु वो भी वाहिद है। अल-बलदानी तस्निया है तो अल-कबीरानी भी तस्निया आएगी, उसकी सिफत भी तस्निया आएगी। अल-बिलादुल ये जमा है, अल-कबीरा ये जमा के हुक्म में, जमा तो नहीं है लेकिन जमा के हुक्म में, इसलिए कि गैर आकिल की जमा जो होती है वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आती है। कोई भी थिंग जो गैर आकिल हो, जिसको अकल नहीं हो, इंटेलेक्चुअल ना हो, उसके अंदर इंटेलेक्ट ना हो, अकल ना हो, तो ऐसी चीजें जो है वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आती है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं। तो अल-बिलाद जमा है, अल-कबीरा ये वाहिद मुअन्नस है जो जमा के हुक्म में है, तो ये अल-बिलादु कबीरा होगा। इसी तरह एराब, अल-बलदु को पेश है तो अल-कबीरु को पेश आएगा। रायतुल बलद अल-कबीरा, मैंने एक बड़ा शहर देखा, अल-बलद को ज़बर आया है तो अल-कबीरा को ज़बर आएगा। मररतु बिल बलदिल कबीरी, मैं बड़े शहर के पास से गुजरा तो बलद को यहाँ पर कसरा आया तो अल-कबीर को भी कसरा आया, इसको बलद को ज़ेर आया तो उसको भी ज़ेर आया। तो ये 4 चीजें हैं। ये टाइम चूंकि हो गया है, बिल्कुल ब्रीफ मैं आपको समझाया हूँ। फिर जो है ठीक है, अल्लाह बरकत। भाई के लिए अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वो कुछ डाउट था मेरे को, बोलिए। इससे रिलेटेड नहीं है बट थोड़ा दूसरे मदरसे का था तो बोलिए थोड़े डाउट्स क्लियर करना। बोलिए। इलल्लाही का उर्दू में तर्जुमा? किसका? इलल्लाही का? जी अल्लाह की तरफ।
अल्लाह की तरफ जी इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ। फफिरु उन इलल्लाह, सब आदमियों ने मदद नहीं की का उन अरेबिक सब में तर्जुमा क्या होगा? मा इन सब नसरू, जी उन सब मर्दों ने मदद नहीं की। मा नसरू, मा नसरू नसरू। लिख दो यहाँ पर, नहीं नहीं आप बोल दीजिए, मेरे पास है, मैं लिख लेती हूँ। मा नसरू, उन सब मर्दों ने मदद नहीं की। इस एक आदमी को इनकार नहीं किया गया, इस अरेबिक में एक तर्जुमा। आदमी, इस इस एक एक आदमी को इनकार नहीं किया गया है। मा उन किरा मजहूल का सेगा है, वाहिद मुजक्कर जी नहीं, गायब। इस एक आदमी को इनकार नहीं किया गया है। वही मा उन किरा, इनकार नहीं किया गया। शब्द नहीं आता हाँ वही उन किरा मर्द गई का सेगा है ना वो, जी। मा उन किरा। अगर आप उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखना चाह रहे हैं तो मा उन किरा हादर रजुल, मा उन किरा हादर रजुल। लेकिन हादर रजुल की लिखने की जरूरत नहीं है, उतने में समझ में आ जाता है। फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मा उन किरा, अनकरा युनकिरु से इनकार करना, मा उन किरा मजहूल का सेगा। जी ठीक है, जी अभी ये हमारे मामलात है और इसका मामला है और वो उसका मामला है। ये हमारे ये मामलात हैं। जी और वो हादी उसका मामला है। हादिही उमूरुना वज़ालिका अमरुहु, हादिही उमूरुना, हादिही उमूरुना ये हमारे मामलात हैं। वज़ालिका अमरुहु, हादिही हाज़िही उमूरुना, अम्र वाहिद जमा जी उमूर, हादिही उमूरुना, हादिही उमूरुना ये हमारे मामलात हैं। जी वज़ालिका वज़ालिका अमरुहु, और वो उसका मामला है। जी ठीक है, वो इस एक औरत का लड़का है और ये इस एक आदमी की लड़की है। वो इस एक औरत का लड़का है। जी ये इस एक आदमी की लड़की है। एक मिनट, पहला पहला पार्ट देखिए, वो इस एक औरत का लड़का है। जी वहुआ इमरातु हादिहिल मरअती, वहुआ वहुआ वलदु वो बोल रहे तो हादिहिल, इसमें इशारा हो जाता शायद ना मौलाना, हाजा या जालिका तिलका ऐसा कुछ आता शायद ना। हुआ भी वो इसी के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो भी इसमें इशारा है। अगर आप जालिका जी लिखना चाह रहे हैं तो जालिका लिखिए, जालिका भी अच्छा आता है और जालिका। हुआ भी आता है। जालिका अच्छा जालिका वलदु हादिहिल मरअती, जालिका वलदु हादिहिल मरअती, वो इस एक औरत का लड़का है। जी और इस एक आदमी की लड़की है। कौन सी, ये या वो? और ये और इस ये जी वहादिही, हाँ उसके बाद बोले, इस एक आदमी की लड़की है। वो इस एक औरत का लड़का है और ये इस एक आदमी की लड़की है। वहादिही वल बिन्तुल रजुली, वहादिही बिन्तुर रजुली, वो और ये एक आदमी की लड़की है। जी वहादिही बिन्तु हादर रजुल भी कह सकते हैं, बिन्तु हादर रजुल इस आदमी की लड़की है। वहादिही बिन्तु हादर रजुल, वहादिही बिन्तु हादर रजुली। ठीक है, जी वो सब नौजवान लड़के हैं। उलाइका उलाइका औलादुल शबाब, उलाइका उलाइका या हम नौजवान की मीनिंग क्या है मौलाना? शबाब, फितियानुन है शायद ना। शबाब नौजवान की माने शबाब के हैं, शुबान कह सकते हैं, फितियान कह सकते हैं, फता की माने नहीं नौजवान, फितियान नौजवान, कहते हैं। नौजवान के मीनिंग फितियानुन है ना। फता वाहिद है, फितियान प्लूरल है इसका। फता जी जो तो है, नौजवानों है यहाँ पे, वो सब फितियान, नौजवान लड़के हैं। हाँ तो फितियान आएगा, फितियानुन जी हाँ फितियान नौजवान। शुबाकुन भी आता है, शबाबुन भी आता है, शुबान भी अच्छा आता है। अच्छा ये उस्ताज है और वो इसके तुलबा है। ये उस्ताद है। हादल मुदर्रिसु, वो हाजा हादल मुदर्रिसु, मौलिमुन भी आ सकता है मौलाना। हाँ आता, मौलिमुन भी आता, मुदर्रिस भी आता, अच्छा मुदर्रिस और मौलिम दोनों भी आ सकता है। व उलाइका
वो उलाई का बोलिए आगे क्या है सेंटेंस उर्दू में? इसके तुलबा है। वो उलाई का तलामिदु तलामिदुहु तलामिदुहु तलामिदु माने स्टूडेंट्स, जी, ठीक ये है? इनकी तलामिदु बस है और वो इसका ड्राइवर है। क्या? ये इनकी बस है ये और वो इनकी बस। उसका ड्राइवर है। हादिही सय्यारतु हादा, हादिही सय्यारतु हादा, वो बस का हाफिलतुम भी होता। हाँ बस हाफिलतुन भी आता, हाफिलतुन बस। और बस को बस भी कहते हैं अरबी में, बस अच्छा, बस। अरबी में बस को बस भी कहते हैं, हाफिलतु भी कहते हैं, बस भी इस्तेमाल होता है। ड्राइवर का साइकुन, साइकुन के माने ड्राइवर, साइकुन, जी। ठीक है? मन तिलका तिलका मौलिमतुन, वो मुअल्लिमा कौन है? वो मुअल्लिमा कौन है? और तिलका मौलिमतुन वो एक उस्तादनी है। हाँ उस्तादनी है। मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमा भी कह सकते हैं, उस्तादनी भी कह सकते हैं। अच्छा, हाजिही अशजारुन व तिलका अख्ताबुहा अहताबुहा, ये दरख्त हैं और वो उसकी लकड़ियां हैं। जी। यह दरख्त हैं और वो उसकी लकड़ियां हैं। हाजिही अम्बाहुन्ना व जालिका नबाअकुम, हादिही अम्बाहुन्ना अम्बाहुन्ना, अम्बाहुन्ना अम्बाहुन्ना क्या माना? थोड़ा अम्बाहुन्ना वाक़ियात का, क्या करें? वाकयात। जी। नबाउन के माने खबर देना है, नबाउन के माने खबर देना है। नहीं, अब अनबाउहुन्ना है ये, तो वाक़या की मीनिंग है क्या ये? नहीं, खबर के माने में है। ये खबर उन औरतों की खबर कहानी। है, ये उन औरतों की खबरें हैं। अच्छा, खबर, नोटिफिकेशन। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? हाजी अब अम्बाउहुन्ना व जालिका नबाउकुम, ये उनकी खबर है और वो उन लोगों की खबर है। बस मेल फीमेल के प्रोनाउन चेंज हुआ है बस। अम्बाउहुन्ना में प्रोनाउन ये फीमेल के लिए प्रोनाउन है और वो नबाउहु में मेल की ये है प्रोनाउन है, तो डेमोन्स्ट्रेशन। इसका तर्जुमा ये होता क्या? ये इन सब औरतों की कहानियां हैं और वो उस आप सब की कहानी है। हाँ कह सकते हैं, असल में खबर है उसके माने, खबर के, अच्छा। लेकिन कहानियां उसके लिए, कहानी के लिए किसस का लफ्ज आता है अरबी में, किसस, अच्छा, किस्सतुन, ठीक। हाजा मालिकुन व जालिका अब्दुन व ये हाँ ये आका है, वो गुलाम है। हाउलाई उमालुन, उम्मालो, उम्मालो एम्प्लॉइज, काम करने वाले हैं। हादा मालिकुन ये ओनर है और वो क्या है उसके बाद? हाउलाई उम्मालुन, तो ये है उम्मालुन, क्या? ये क्या है बादशाह है एम्प्लॉइज? और वो ये गुलाम है। हाँ ये बादशाह है, ये मालिक के माने किंग, ये जो है किंग है, और गुलाम के माने स्लेव। हाँ क्या कहते हैं जी। उसको? क्या है? अब्दुल ना, अब्दुल के माने गुलाम, स्लेव, और गुलाम, उम्माल के माने एम्प्लॉइज, काम करने वाले। जी। तो ये तर्जुमा हो सकता है मौलाना, ये बादशाह है और वो गुलाम है और ये मजदूर है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वही तर्जुमा। हाउलाई आबिदूना व उलाइका मलाइकतुन मलाइकतु, ये बंदे हैं और वो फरिश्ते हैं। तो ये इसका तर्जुमा ये हो सकता है ये सब इबादत गुजार है और वो सब फरिश्ते हैं। हाउलाई, जी मौलाना, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, बोलिए। ये सब इबादत गुजार है और वो सब फरिश्ते हैं, ये तर्जुमा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आबिदुन की माने वही इबादत गुजार, बंदे कहें या इबादत गुजार कहें, दोनों भी कह सकते हैं। अच्छा। इबादत गुजार है, वो फरिश्ते हैं, ठीक है। कुछ मुसाफिरों के लिए कि अरबी होना? मुसाफिरों के लिए, मुसाफिर की अरबी मुसाफिर ही आती है, रुकाब या मुसाफिर, मुसाफिरों रुकाब, के लिए। कुछ मुसाफिरों के लिए,
जी पूरा सेंटेंस बोल दे तो बना सकते हैं कुछ मुसाफिरीन लिल नहीं, मुसाफिरीन पूरा सेंटेंस ये है कुछ मुसाफिरों के लिए लिल पूरा मुसाफिरीन sentence है। लिल मुसाफिरीन लिल मुसाफिरीन लिल मुसाफिरीन कुछ जी। मुसाफिरों के लिए 2 घरों से, ये पूरा सेंटेंस 2 घरों से। मिम अरबी में बैतैनी तर्जुमा। मिम बैतैनी बैतुल वाहिद है बैतुल वाहिद है और बैतैनी तस्निया है 2 घरों से मिम बैतैनी मिनल आना या मिन आना खाली? अगर मिनल लिखना है तो फिर मिनल बैतैनी कह सकते हैं मिम बैतैनी मिनल बैतैनी दोनों भी कर सकते हैं मारिफा है